हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माइंड्स। आज हम शेक्सपियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। जो उनके फूल्स होते हैं, जो उनके क्लाउन्स हैं, कैरिकेचर आप इसको बोल सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चले बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन टैकल करना शुरू करते हैं वन बाय वन। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठे होंगे अपना असेसमेंट करने के लिए। Who among the following says better a witty fool than a foolish wit? First, the licensed gesture in 12th night. Option B is correct answer. Better a witty fool than a foolish wit. The line captures the paradox that appearance of folly can mask moral wisdom. First uses songs, disguised identity, and ironic comments to expose pretense in Olivia and Orsino quotes. So the quote underlined in the plays themes that social rank does not guarantee moral or intellectual superiority. The fool in King Lear primarily serves as option B, Lear's conscience and critic. The fools in King Lear functions as Lear's conscience through riddles, मतलब अपने पहेलियों के थ्रू, songs and bitter irony, and chastise Lear's abdication, poor judgment, मतलब उसके बैड जजमेंट, गलत निर्णय पर, एंड फिलायल ब्लाइंडनेस, मतलब उसकी चापलूसी में जो अंधा हो गया रहता है। द फूल्स रोल इन डायग्नोस्टिक एंड एथिकल, मतलब फूल का रोल कैसा है, डायग्नोस्टिक है एंड एथिकल है। ही स्पीक्स टू ट्रूथ टू पावर अंडर द प्रोटेक्टिव गाइज द ऑब्जेक्टिंग, मेकिंग हिम बोथ कमेंटेटर अ मोरल मिरर फॉर लियर्स डिटेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टच स्टोन appears in which Shakespeare's comedy? Option B, As You Like It. Touchstone is a professional clown in As You Like It who accompanies Rosalind and Celia. Into the Forest of Arden, he plays a philosopher fool, paranoid, witty, and satirical. Through paradox and mock erudition, he undermines court pretensions and exposes the comic contradiction between courtly life and pastoral simplicity. Lancelot Gobbo is a clown in Merchant of Venice. Option A is correct answer. The Merchant of Venice, Lancelot Gobbo, is the clown servant figure in the Merchant of Venice. His comic soliloquies and senses with his father, Old Gobbo, provide low comic relief while also foregrounding questions of alliance, elegance, identity, and social mobility. He shifts service from Shylock to Bassanio, and his comic language highlights the tensions between social role and personal conscience. Next question है आपका, Dogberry is a comic constable, okay, and is a caricature in, मतलब Dogberry आपका comic constable है, ये caricature है किसमें? Option B, Law and Order, Incompetence, and much watch constable in Much Ado About Nothing. Law and Order Incompetence, Dogberry satirized the incompetence of local law enforcement, a watch constable in Much Ado About Nothing. Dogberry malapropism and self-importance lampoon ineffective civic authority, yet ironically his bungling uncovers the villainy of Boccaccio and Cornet. Thus, Dogberry caricature
the gap between pretended authority and real competence. The character bottom in किसमें बॉटम है आपका मिड समर नाइट स्ट्रीम सिंबलाइज मतलब क्या सिंबलिक इसका मीनिंग है तो इग्नोरेंस इन सेल्फ लव ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर निक बॉटम embodies self deluded vanity. He is absurdly confident about his acting gifts and oblivious to ridicule his transformation into an ass, and Titania's enchanted infatuation intensifies the comic exposure of his ignorance. Bottom therefore symbolize the comical intersection of ignorance and self-love, the dramatic device, the mock human pride. Next question. Falstaff, wit and cowardice together mock. Option A, feudal honor and chivalry. Falstaff boastful cowardice and comic ethics parody the chivalric code. In Henry IV, he famously derides honor and as an empty word. His questioning of the value of honor and the face of physical danger, making him a carnivalesque figure who critiqued the medieval ideal of marital glory and the social pressures that produced it. Next question, Artosilus in the Winter's Tale. पहला तो यही है कि आर्टोसिलस किसमें है तो द विंटर्स टेल में इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन बी अ पेडलर एंड रफ. Artosilus in the Winter's Tale is the rugged ballad seller and pickpocket means chor. Comic trickster who traffics in songs petty theft मतलब वो चोरी छोटी छोटी करता है and very commentary. His functions are pragmatic. He people's plot movement through theft and gossip मतलब वो क्या करता है चोरी करता है और लोगों को बरगलाता है गॉसिप करता है. And thematic, he represents survival by wit and the porous ethics of the lower world on the lower world. Next question है आपका the grave digger scene in Hamlet represent मतलब ग्रेव डिगर सीन हेमलेट में क्या रिप्रेजेंट करता है मेडिएशन ऑन डेथ एंड इक्वालिटी. द ग्रेव डिगर सीन इन हेमलेट एक्ट 5 मतलब ये सीन किसमें है तो एक्ट 5 uses clownish banter to stage a profoundly philosophical reflection, skulls and earth level social distinction, showing how death equalize मतलब किंग एंड क्लाउन अलाइक मीन्स जब मृत्यु है तो वो आप किंग मरा हो या उसका एक छोटा से छोटा कोई भी पर्सन मरा हो उसके राज्य का दोनों कैसे बराबर हो जाते हैं ये इसमें इसका ये सेंस है. The scene mixes gallows humor and existential insight, making the comic voice into a vehicle for a universal truth. Means आप जब कोई मर जाता है तो वो राजा हो प्रजा हो मेल हो फीमेल हो जानवर हो छोटा सा कोई कीड़ा हो डजेंट मैटर उसके बाद सब बराबर है तो जीते जी भी तो बराबर होने चाहिए ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉम्पी इन measure of measure reflects. Option A, the conflict between sin and law. The conflict between sin and law Pompey that the board in measure of for measure functions as the comedic embodiment of the play's sexual economy and its hypocrisies.
Through cynical jokes, Pompey exposes the tension between legal strictness, Angelo enforcement, and human sexual behavior. Thus, he highlights the play's central conflict between punitive law and private vice. Next question. Epimetheus in Timon of Athens symbolize. Option B. Philosophical cynicism मीन्स वो मनुष्य द्वेष मिजंथ्रोपी एक सामाजिक कपट के मीन्स मिजंथ्रोपी और सामाजिक कपट के प्रति घृणा का प्रतीक है ये. एपिमेंटिस इन टिमोन ऑफ एथेंस एक सिनिक फिलोसोफर है जो सोसाइटी के ग्रीड, फ्लैटरी और करप्शन को हेट करता है. ही सिंबलाइज बिटर ट्रुथ टेलिंग and misanthropy, mocking Timon's generosity as foolish. नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लॉटिन इन सिम्बलिन इज पोर्ट्रेट एज. ऑप्शन बी अ ग्रोटेस्क कैरिकेचर ऑफ प्राइड. ग्रोटेस्क मीन्स विचित्र, बिजारे. क्लॉटन इन सिम्बलिन एक फुलिस येट एरोगेंट कैरेक्टर है. मतलब कैसा है, पुलिस है और एरोगेंट कैरेक्टर है. उसका बिहेवियर एक कैरिकेचर ऑफ वैनिटी एंड प्राइड के रूप में दिखाया गया है. ही पैरोडीज नोबल प्रिटेंशियस थ्रू हिज स्टूपिडिटी एंड इन्फ्लेटेड ईगो. मीन्स शेक्सपियर ने इसे जो क्लॉटेन है ना सिम्बलिन में, इसे कॉमिक विलन की तरह यूज किया है. कॉमिक विलन, नॉट सीरियस, लाइक यागो. किसमें है यागो? अथेलो में. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्टर्ड इन लव लेवर लॉस्ट मॉक्स मीन्स पहले कॉस्टर्ड किसमें है? लव लेवर लॉस्ट में है. अब इसका ये कि ऑप्शन बी एकेडमिक पेडेंट्री. कॉस्टर्ड इन लव लेवर लॉस्ट मॉक्स स्कॉलरली पेडेंट्री और लिंग्विस्टिक शो ऑफ को. He uses a simple rustic wit to expose the artificiality of learned courtiers. यह पात्र विद्वानों की भाषा के आडंबर पर व्यंग है. जैसे आप किसी से बात करते हो और आपको पता है सामने वाला बहुत नॉलेजेबल नहीं है, तो आप उसके लेवल पे जाके बात करो ना कि आप पेडेंटिक हो जाओ कि शो ऑफ करने वाला कि हम तो लच्छेदार वर्ड का ही प्रयोग करेंगे चाहे आपको आए या ना आए. तो इसको पेडेंटिक बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेफनो एंड ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट पैरोडी. ऑप्शन ए कॉलोनियल ग्रीड एंड ड्रंकनेस. ये पात्र कॉलोनियलिज्म के लोभ और अंधी सत्ता के हास्यात्मक आलोचना करते हैं. स्टेफनो और ट्रिंकुलो, पहला क्वेश्चन यही है कि ये किस में कैरेक्टर है, तो आपके द टेम्पेस्ट में है और रिप्रेजेंट ड्रंकन ग्रीड एंड क्लाउनिश एम्बिशन. मतलब ये इनका एम्बिशन कैसा है? बहुत सीरियस नहीं है. द पैरोडी ऑफ द colonizers desire for power through their foolish attempt to rule the island with Caliban. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Lunas in the two gentlemen of Varuna is famous for. Option A his devotion to his god. लुनास ने अपने कुत्ते के प्रति प्रेम उसे मानवीय और हास्यपूर्ण बनाता है. जैसे लोग कहते हैं ना आई एम डॉग लवर. ओनली काहे डॉग लवर हो और उसको चिकन भी खिला रहे हो तो आप चिकन लवर हुए, डॉग लवर हुए, ये कैसे हो सकता है? एनिमल लवर हुए. कहां से एनिमल हुए? खाली कुत्ते के प्रति आपका प्रेम है, बाकी जीवों के प्रति नहीं है. तो ये एक तरीके से मानव की हिपोक्रेसी को दिखाता है.
कि आप कुत्ते से प्रेम करते हो तो बोलते हो एनिमल लवर, और उसको बोटी खिलाते हो तो कहते हो, तो फिर आपका प्रेम कहाँ चला गया जो प्लेट में रखते हो, काट पीट के खाते हो? Linus is the true gentleman of Varuna is famous for his comic affection toward his dog Crab. His monologue about his dog crimes contrast with human hypocrisy. Lavache in All's Well that ends well. पहली बात लवाचे है किसमें? तो All's Well that ends well में provide humor through, मतलब ये ह्यूमर किसके, यह पात्र जो है ना कि ये माध्यम से, ये पात्र हास्य के माध्यम से समाज का दर्पण है। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सैटारिकल कमेंट्री। लवाचे इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एक बिटर टंग्ड क्लाउन है जो कोटली हिपोक्रेसी और मॉरल डबल स्टैंडर्ड पर व्यंग करता है। ही यूजेस टू एक्सपोज प्रिटेंशन। अब हिपोक्रेसी कैसी? जैसे सोसाइटी में सारे फास्ट किसके लिए होते हैं? सारे फास्ट कौन करता है? और प्रेम हो ना हो, व्रत करके लंबी उम्र करनी है, तो ये भी तो हिपोक्रेसी ही है। और वैसे भी जिसके जितनी होती है उतनी ही होती है, तो इतना दिखावा किस बात के लिए? तो रियलिटी में जीना चाहिए, ना कि हिपोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउन इन अथेलो अपीयर्स ब्रीफली टू। Option A is correct answer. Provide comic relief and irony. The clown in Othello briefly appears for comic relief, mocking seriousness tension between Othello and Desdemona. His punning speech adds a dramatic irony before the tragedy depends. यह अल्प उपस्थिति में भी नाटक की गंभीरता को क्या करता है? बैलेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट फाइनल सॉन्ग इन 12th नाइट सिंबलाइज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लाइफ सिनिकल सॉरो एंड जॉय। मीन्स यह गीत जीवन के सुख दुख के चक्र को रूपक में दिखाता है। फर्स्ट फाइनल सॉन्ग इन 12th नाइट, द रेन इट रेन्थ एवरी डे, द रेन इट रेन्थ एवरी डे सिंबलाइज द बिटर स्वीट, मतलब ये तो ऑक्सीमोरन हो गया। हाँ, द बिटर स्वीट रिदम ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में तो खट्टी मीठी यादें बनी रहती है, लेकिन वही है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू हम लोग करते रहते हैं। इट रिमाइंड्स ऑडियंस दैट इवन आफ्टर फेस्टिविटी ह्यूमन लाइफ रिमेन्स इम्परफेक्ट। और जब आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है तो क्या आप ओकेजनली हैप्पीनेस हो जाओगे क्या कि नहीं आज तो दिवाली है मुझे खुश होना है, आज दशहरा है मुझे खुश होना है? नहीं, आपके अंदर हैप्पीनेस है तो आप डेली खुश रहोगे, नहीं तो आप अगर अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हो तो दिन कोई सा भी हो आप काटोगे बस। द फूल्स डिसअपियरेंस इन किंग लियर आफ्टर एक्ट 3 सजेस्ट। ऑप्शन बी, लियर इनर अवेकनिंग रिप्लेसिंग द फूल। अब लियर को बाहरी मूर्ख नहीं, अंदर की सच्चाई दिखने लगी है, जैसे कि उनकी बेटी कौन सी थी, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। अब इनकी दोनों की फ्लैटरी पे वो तो फिदा हो गए, और कॉर्डेलिया की सच्चाई उनको दिख नहीं रही थी। अरे हम आपसे प्रेम करते हैं नहीं करते हैं ये एक्ट में दिखना चाहिए ना, एक्शन में दिखना चाहिए। कि बड़े बड़े पहाड़ तो उन्होंने लगा दिए और फिर बोले कि नहीं नहीं आप तो इतने वो नहीं रख सकते अपने पास, सेवक नहीं रख सकते, सैनिक नहीं रख सकते, और तो उनको निकाल ही दिया। तो आपको किसी के शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, एक्ट पे जाना चाहिए। किंग लियर के एक्ट 3 के बाद फूल का गायब हो जाना सिंबॉलिक है। लियर के अब खुद अपने इनर फूल, मतलब जो लियर है राजा है, कहने को फूल उसका वो है, बट ये इनर फूल सबके अंदर होता है ना, तो वो भीतर के विवेक को समझ जाता है। द फूल वॉइस मर्ज इनटू लियर ट्रेजिक सेल्फ अवेयरनेस एंड which fool delivers the line, this cold night will turn us all to fools and madmen. Option
B. Lear's Fool. This cold night will turn us all to fools and madmen. In spoken by Lear's Fool in King Lear, it expresses the madness of moral chaos. मतलब ये जो मॉरल भगदड़ है, अंधभक्ति है, इसमें क्या है ना कि इंसान अपनी मैडनेस में आ जाता है, उसको मैनियक हो जाता है. स्प्रेडिंग इन किंगडम. यह पंक्ति लियर के साम्राज्य में व्याप्त नैतिक पतन और शीतल निराशा का प्रतीक है. जैसे आपने कोई रूल ही निकाला है अपने घर में, आपके मॉरल है वो, बट वो आज के रिलेवेंसी में नहीं है, फिर भी आप उसको ही अगर भाव दिए जा रहे हो, ये भी तो मूर्खता ही हुआ ना. द फूल इन 12th नाइट ऑल्सो सर्व एज. ऑप्शन ए, अ मॉरल कमेंटेटर ऑफ ह्यूमन फोली. Faced in 12th Night not only entertains but mocks the foolishness of nobles like Olivia and Orsino. He represents comic intelligence, using irony and wit to show the audience the truth of human vanity. मतलब फेस्ट एक मॉरल कमेंटेटर है जो लोगों की मूर्खता पर क्या करता है, व्यंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Falstaff character reappears in which of the following plays? Option A, Henry IV Part 1 and The Merry Wife of Windsor. फाल्स्टाफ व्यंग, मुग्धता मतलब सेल्फ लव और समाज की बुराइयों का प्रतीक है. सर जॉन फाल्स्टाफ appears in Henry IV Part 1 and its sequel Part 2 also. हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में तो है ही, पार्ट 2 में भी है. एंड अगेन इन द मैरी ऑफ विंडसर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है. पहली बात, एक्सप्लेनेशन आपके कैरेक्टर्स पर कमांड लेके आएगी और आपको इसकी स्टोरी भी याद रहेगी. ही इज शेक्सपियर्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरिकेचर, ग्रीडी, कवर्डली, विटी एंड लवेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शेक्सपियर्स फूल यूजेस पन एंड सॉन्ग्स टू रिवील ट्रूथ अंडर डिस्गाइज? फिस्ट, लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्या भाई. फिस्ट यूजेस सॉन्ग्स, रिडल एंड वर्ड प्ले द अनकवर्ड ट्रूथ बीनीथ डिस्गाइज. मतलब वो जो सत्यता का जो चोला पहने हुए है उसको अनकवर करता है. कौन? वर्ड प्ले से. वर्ड प्ले किसको कहते हैं? पन को कहते हैं. पन है, रिडल्स है, तो ये फेस्ट करता है. ही मॉक्स बोथ ओलिविया मॉर्निंग एंड ओर्सिनो रोमांटिक एक्सेसेस. फेस्ट ट्रुथ इन डिस्गाइज का प्रतीक है. वह मजाक में भी क्या कर रहा है? गंभीर सत्य को कहता है. कभी कभी होता है ना, हमको सच बोलना रहता है तो हम बोल नहीं पाते, बोल तो जाते हैं बट बोलते हैं जस्ट किडिंग. I am wise enough to play the fool. This line is spoken by. Option B, Touchstone. I am wise enough to play the fool is spoken by Touchstone in As You Like It. It reveals the paradox of wisdom and folly, suggesting that the fool sees what others ignore. सच्चा मूर्ख वह है जो बुद्धिमत्ता को छिपाकर क्या करता है? सत्य बोलता है. और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट बिलोंग टू विच कॉमिक टाइप? ऑप्शन ए, रस्टिक एंड क्लाउनिश फूल. द ग्रेव डिगर्स in Hamlet are rustic clowns representing the common man perspective on death. Their earthy power contrast Hamlet philosophical grief. ये पात्र मृत्यु को सामान्य और सार्वभौमिक सत्य के रूप में दिखाते हैं. और आज हम 27 तक कवर कर लेते हैं, फिर 100 तक कवर करेंगे हम नेक्स्ट टाइम. ऐसे 2020 का सेट कंप्लीट करके 100 तक ले जाएंगे. Who is often considered Shakespeare's most intellectual fool? Option C, Lear's Fool.
Means the fool in King Lear's is often regarded as Shakespeare's most intellectual fool, speaking through paradox and riddles. He mirrors Lear's conscience and moral blindness. ये फूल लियर की आत्मा की आवाज है. मूर्ख में कौन है? सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा विद्वान. और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड क्लाउन इन शेक्सपियर प्ले जनरली डिनोट्स. मीन्स शेक्सपियर के प्ले में ये जो क्लाउन है ये क्या डिनोट करता है? और रस्टिक सिंपल्टन. In Shakespeare, usage clown is usually denotes a country rustic or comic servant who provides humor through simplicity. Clown का अर्थ है देहाती मजाकिया पात्र जो हंसी में क्या गहरी सच्चाई कर देता है. तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले टाइम में हम अपने सारे ये कैरिकेचर और क्लाउन्स को कवर करेंगे. देन एक पार्ट